Hello everyone, this is Sandeep Prathur again. Welcome to my channel US Recruitment. Now, in this video, we are going to discuss about some interview question and answers, especially for freshers, even for all professionals, because I have already created a video for the freshers, but we have not discussed about some more common questions, some advanced level common questions for the freshers and the other professionals. So we are going to discuss about those questions in the same video. So let's start. This is a very first and a very common question, that is, tell us about yourself, right? So each and every fresher as well as professional, definitely they must have an idea how to explain about their self. So there are two ways I'm going to represent. The first one is simply you can say, my name is Raj, I'm from Delhi, I've completed bachelor's in computer science. That was back in 2011. You can mention from the university you have completed. I did my high school from Oxford Higher Secondary School. I've completed my senior secondary or the higher secondary examination as well from Excellence Higher Secondary School. You can mention my hobbies are cycling, playing cricket, traveling, trekking, etc. Some of the strength and weakness mentioned. My strength are I listen to the person carefully. I love to learn new things happily. I have good patience. My weakness is sometimes people take advantage of my honesty. So these are some common kind of answers you can provide. I think we all are familiar with these kind of questions and answers. So you can change a little bit as well. You can mention about your family background as well in the same page. You can mention about your goals as well, right? So you can mention those things one by one. You can just simply mention the first slide. In the second slide, we are going to discuss about that how you can represent your family, your background, and as well as some of your goals. तो आप अगर चाहें तो ना फैमिली को रिप्रेजेंट करते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं, अपने गोल्स ना बताए हुए भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इंटरव्यू डेफिनेटली आपसे आगे जाके चीज़ें पूछेगा और अगर आप चाहें तो वो रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। नाउ वी विल डिस्कस अनदर वे जहां आप आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और अपने गोल्स के बारे में बता सकते हैं। यू कैन स्टार्ट इन द सेम वे। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी to introduce myself. My name is Robert. I belong to Andhra Pradesh. I'm currently living in Bangalore. Coming to my family background, there are 5 members in my family. My hobbies are listening to songs, cooking and watching movies in the free time. My strength, that I'm a quick learner and self-confident. My weakness, I'm not flexible until I finish my work and I'm not saying no. सो वीकनेस में आपको ऐसी चीजें रिप्रेजेंट करना है कि या तो आप उसको ओवरकम कर रहे हैं, आप जो है उस चीज को वीकनेस आपको आपकी पता है और उसको आप जो है दूर करने की ट्राई कर रहे हैं, राइट? उसको ओवरकम कर रहे हैं, ये आपको रिप्रेजेंट करना है वीकनेस में। नाउ माय शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ job in the reputed company. My long-term goal is to get a good position in the reputed company, right? तो ये आपने आपके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल भी जो है रिप्रेजेंट कर दिए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट करना है, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपने गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल में आप ये मेंशन कर सकते हैं कि भाई अभी तो यू आर वर्किंग एज इफ यू आर वर्किंग एज अ फ्रेशर, सो आई जस्ट वांट माय शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ जॉब इन द रेप्यूटेड कंपनी, राइट? किसी भी एक रेप्यूटेड कंपनी में मैं क्या करना चाहता हूँ, जॉब स्टार्ट करना चाहता हूँ। दूसरा लॉन्ग टर्म गोल, तो लॉन्ग टर्म गोल में आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आई वांट टू गेट अ गुड पोजीशन इन द रेप्यूटेड कंपनी, आई वांट टू बिकम अ मैनेजर इन द रेप्यूटेड कंपनी लाइक योर्स। ठीक है, मैं यहाँ पर मैनेजर बनना चाहता हूँ या मैं किसी अच्छी लीड की पोजीशन पर जाना चाहता हूँ। तो ये चीजें क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ यू आर एन एक्सपीरियंस पर्सन, सो वो भी यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। I have a total 10 years of experience into the recruitment, and I have good working experience as a team leader and manager as well. I have worked with multiple clients related to IT, non-IT, engineering, healthcare, different clients and different kind of positions I have worked, like software engineer, the business analyst, project manager, program manager, those kind of positions I have covered. Other things you can also include,
Networking skills you can also include here. Like I have worked on different networking positions like network engineer, systems engineer, systems architect, network architect. So you can mention about yourself, what you did in last 10 years, 5 years, 2 years, whatever you did, you can mention here. I hope it is clear and very understandable. तो अब हम आगे की स्लाइड्स में बात करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ स्ट्रेंथ और कुछ वीकनेस, क्योंकि क्या होता है कि हम कॉमन स्ट्रेंथ और कॉमन वीकनेस जो है लेकर चलते हैं, तो कुछ और वीकनेस और कुछ स्ट्रेंथ हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो फर्स्ट स्ट्रेंथ है माई स्ट्रेंथ आर आई एम अ हार्ड वर्कर एंड ऑल्सो एक की लर्नर। मैं एक बहुत हार्ड वर्कर हूँ और एक अच्छा की लर्नर हूँ। My strength is that I can learn new things easily and I'm self motivated and I have a positive vibes. ये भी आपको बहुत हेल्प करती है कि भाई आप चीज़ें बहुत इजीली सीख लेते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, खुद से मोटिवेटेड हैं काम करने के लिए, और जो भी करते हैं उसमें पॉजिटिव वाइब्स आपको आती हैं, पॉजिटिव आपको चीज़ें दिखती हैं, राइट। तो ये एक थोड़ा सा इंप्रेशन डालने के लिए है कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं। अब बात आते हैं माई स्ट्रेंथ, आई एम अ क्विक लर्नर एंड अ ग्रेट मल्टीटास्कर। ये भी एक बहुत अच्छी स्किल है कि मैं एक ग्रेट मल्टीटास्कर हूँ। तो यहाँ पर आप कॉम्बिनेशन स्ट्रेंथ का यूज कर सकते हैं, या फिर आपको जैसा भी ठीक लगे, आप आपकी जो भी स्ट्रेंथ इसमें से आपको याद रहे। आपने अगर वीडियो देखा और पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको कोई कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ तो आपको याद रह ही जाएगी। मल्टीटास्कर, पॉजिटिव वाइब्स, सेल्फ मोटिवेटेड, क्विक लर्नर, कोई ना कोई स्किल्स तो आपको जरूर याद रहेगी जो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए मैंने काफी सारी स्ट्रेंथ और मेंशन की, और भी नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको मैं काफी स्ट्रेंथ मेंशन इसी में आपको मिलेगी। सम वीकनेस, वीकनेस ओवर थिंकिंग है, बट आई एम वर्किंग ऑन इट, राइट। माई वीकनेस इज ओवर थिंकिंग बट आई एम वर्किंग ऑन इट। तो हम है ओवर थिंकिंग बट मैं इस पे काम कर रहा हूँ, राइट। माई वीकनेस इज आई ट्रस्ट पीपल इजीली, राइट। मैं इजीली लोगों पर ट्रस्ट कर लेता हूँ, ये मेरी वीकनेस है। Another thing, I'm very focused on what I do, so sometimes I forget to my meal as well, right? मैं इतना काम में फोकस्ड हो जाता हूँ कि कभी कभी मैं अपना मील भी खाना भूल जाता हूँ। ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है कि हाँ ठीक है, ये जो है पैशनेट है किसी काम को करने के लिए, और ये अपना 100% देता है, या तब तक इसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जब तक कि इसका काम कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ये कुछ चीज़ें डिफाइन करती हैं आपकी, आपका जो है कैरेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, कि भाई ऑब्वियसली यहाँ इतना फोकस्ड होकर ये आदमी काम कर सकता है। माई वीकनेस, आई फील कंफर्टेबल ओनली व्हेन द वर्क वाज कंप्लीटेड बाय मी विद अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो मैं तब कंफर्टेबल होता हूँ जब मेरा काम जो है कंप्लीट हो जाता है एक दिए गए टाइम में, भाई। तो ये भी क्या हो सकता है आपकी एक अनदर वीकनेस है, बट आप उसने उसको पॉजिटिव तरीके से आपने रिप्रेजेंट किया है। तो जब भी आप ट्राई करें कि वीकनेस को रिप्रेजेंट करें, तब कभी ना कभी उसको क्या करें, एक पॉजिटिव तरीके से रिप्रेजेंट करें। बहुत हेल्पफुल होगा ये कि आपने वीकनेस भी बता दी और उसको एक पॉजिटिव तरीके से रिप्रेजेंट भी कर दिया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ? ठीक है, क्या क्या आपकी जो है बिगेस्ट स्ट्रेंथ हो सकती है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सी स्ट्रेंथ जो है मैंने रिप्रेजेंट कर रखी है, ठीक है, उसके बारे में हम देख सकते हैं। सो फर्स्ट जो है वो है हमारा एंथुजियाज्म, क्रिएटिव थिंकिंग, टेक प्रायोरिटीज या प्रायोरिटाइजेशन, discipline, determination, analytical skills or thinking, communication skills and dedication. So enthusiasm means किसी काम को करने के लिए आप में पैशन, राइट, आप पैशनेबल हो उस काम को करने के लिए, राइट। क्रिएटिव थिंकिंग, आपकी थिंकिंग जो है डिफरेंट तरीके से आप सोचते हैं, समझते हैं, सो दैट इज नॉन एज क्रिएटिव थिंकिंग। टास्क प्रायोरिटाइजेशन मीन्स किस टास्क को क्या प्रायोरिटी आपको देनी है, ये आपको पता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में रहकर काम करते हैं, डिसिप्लिन के साथ काम कंप्लीट करते हैं। डिटर्मिनेशन, कि भाई जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं चीजें और दूसरी चीजों पर फोकस नहीं करूंगा, सो दैट इज डिटर्मिनेशन। एनालिटिकल थिंकिंग मीन्स थिंक समथिंग डिफरेंटली, सोच समझकर कैलकुलेटेड करके चीजें सोचना और करना। कम्युनिकेशन स्किल्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि कम्युनिकेशन स्किल्स भी क्या होनी चाहिए, एक आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और डेडिकेशन, किसी काम को करने का डेडिकेशन। सो दीज आर सम स्ट्रेंथ आई हैव मेंशन। नाउ a very common question, what do you know about our company culture? तो आप
के लिए एक सजेशन है, कभी भी आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएं तो उस कंपनी के बारे में आप हमेशा थोड़ा सा पढ़ें कि कहाँ क्या चीज़ें मेंशन है। तो एक 2-3 हम एग्जांपल लेते हुए चलते हैं। पहला एग्जांपल इसमें लेकर चलते हैं। I have researched your company through social media and on Glassdoor.com. Your employees have a great things to say about you. Also, I focus a lot of positive reviews. मैंने आपकी कंपनी के बारे में सोशल मीडिया पर देखा है, ग्लास डोर में रिव्यूज देखे हैं, काफी अच्छे रिव्यूज हैं और आपके एम्प्लॉयज भी जो होते हैं क्या करते हैं आपकी बहुत वहां पर जो है अच्छे अच्छे थॉट्स उन्होंने रिप्रेजेंट किए हैं, अच्छी चीजें वहां पर लिखी हैं आपकी कंपनी के बारे में। राइट। मैनेजर, अगर कोई मैनेजर है, ठीक है, तो वो किस तरह से चीजों को रिप्रेजेंट कर सकता है? भाई मैनेजर भी है तो वो इंटरव्यू देने गया है, राइट, तो वो भी पहले से वहां काम नहीं किया उसने, बट वो इंटरव्यू अगर देने गया है तो वो क्या चीजें रिप्रेजेंट कर सकता है कि भाई क्या मुझे इसमें अच्छा लगा, राइट। सो यू कैन मेंशन आई रीड मेनी पॉजिटिव रिव्यूज ऑनलाइन अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन इन कंपनी कल्चर। मैंने बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज जो है ऑर्गेनाइजेशन में देखे और मैं आपके कंपनी के कल्चर के बारे में भी फेमिलियर हूँ। यू ऑल्सो ऑफर ग्रेट इंसेंटिव्स टू कीप पीपल मोटिवेटेड। आप एक अच्छे इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करते हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए, एंड इट सीम्स टू बी टाइप्स ऑफ फास्ट पेस environment that values innovation and performance. I've also seen that you have provide values to the people, and that definitely helps in the innovation, the performance. भाई लोगों की आप वैल्यू देंगे, अगर कोई आपका वैल्यू ऐड कर रहा है तो आप डेफिनेटली क्या करेंगे होगा, उसकी परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज होगी, वो इनोवेटिव काम करेगा। दिस इज अ काइंड ऑफ माई काइंड ऑफ प्लेस। ये एक मेरी तरह का ही की कंपनी है जिसमें मैं काम करना चाहता हूँ। कोई एडमिन है, वो ये कह सकता है कि आई नो दैट यू हैव अ ग्रेट रेपुटेशन विथ योर क्लाइंट्स एंड यू आल्सो ट्रीट योर स्टाफ वेरी वेल, because one of my friend was working earlier with your company, and she shared it was one of the best administrative position she has ever worked, right, or ever held. तो मैं जो है आपकी कंपनी के बारे में जानता हूँ, बहुत अच्छी कंपनी की आपकी रेपुटेशन है, आपके क्लाइंट्स के साथ आपकी जो है बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, आप आपके स्टाफ्स को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। और मेरा एक फ्रेंड है जो यहाँ पर जो जिसने यहाँ पर काम किया है, एंड डेफिनेटली दैट लाइक द कंपनी इन्वायरमेंट, और उसे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर काम करना। तो इस तरह से आप चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप आपकी पर्सनालिटी को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि आप आपकी पर्सनालिटी को किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप बताइए कि आप 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटे आप इंटरव्यू देने आए हैं, ठीक है, वो आपकी पर्सनालिटी को तो देखेगा ही, बट आप भी भाई द पर्सन शुड हैव हिज और हर ऑन वैल्यू, राइट। तो खुद की भी अपनी वैल्यू होनी चाहिए, खुद की पर्सनालिटी आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो देखते हैं। आई वुड डिस्क्राइब माई पर्सनालिटी एज अप्रोचेबल, लाइट हार्टेड एंड पॉजिटिव। मैं जो है अपनी पर्सनालिटी में ये कहता हूँ कि भाई मैं बहुत इजीली अप्रोचेबल हूँ, लाइट हार्टेड हूँ और एक पॉजिटिव पीपल हूँ, राइट। आई बिलीव दैट इफ आस्क माई कलीग एंड सुपरवाइजर वुड से द सेम अबाउट मी। अगर आप मेरे सुपरवाइजर से पूछेंगे, मेरे कलीग से पूछेंगे, तो वो भी आपको सेम फीडबैक देंगे मेरे लिए, राइट। अगर कोई मैनेजर हो तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता है, आई एम एनर्जाइज्ड, फोकस्ड एंड मोटिवेटेड टू डू माई बेस्ट, ठीक है। मैं हमेशा एनर्जाइज रहता हूँ और फोकस एंड मोटिवेटेड रहता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा दे पाऊँ, अच्छे से अच्छा बेस्ट कर पाऊँ। आई ऑल्सो टेक दी हाई रोड एंड ट्रीट माई लीडर्स, कलीग्स एंड टीम विथ रिस्पेक्ट, ठीक है। मैं हमेशा अपने लीडर्स को, कलीग्स को, टीममेट्स को एक रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करता हूँ। अगर कोई एडमिन है तो वो कह सकता है आई एम क्वाइट फोकस्ड एंड डिटरमाइंड। मैं क्वाइट हूँ, फोकस हूँ, डिटरमाइंड हूँ चीज़ों को लेकर, ठीक है। यू वॉन्ट हियर अ लॉट फ्रॉम मी अनलेस आई नीड यू, बट रेस्ट अश्योर्ड दैट आई एम वर्किंग हार्ड। हाँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, या आप मेरे से लोगों के मेरे बारे में लोगों से ज़्यादा नहीं सुनेंगे, बट जैसा भी सुनेंगे पॉजिटिव सुनेंगे, और आई डेफिनेटली वर्क हार्ड, राइट। तो ये आप चीजें मेंशन कर सकते हैं, बीइंग रिप्रेजेंटिंग योर पर्सनालिटी। ये क्या होता है, आंसर जब आप इंटरव्यू देते हैं तब आपको सडनली क्लिक नहीं करता है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आपको सडनली आंसर जो है क्लिक कर पाए। चलिए अब हम बात करते हैं कि हाउ मेनी जॉब्स यू हैव अप्लाइड फॉर। कभी कभी होता है कि आपका फर्स्ट इंटरव्यू है, ठीक है, या हो सकता है कि आप अभी डिसीजन नहीं बनाना चाहते हैं इस कंपनी के साथ, तो आप किस तरीके से उसको आंसर कर सकते हैं। I'm currently interviewing with other companies offering a similar role in the industry.
हाँ, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ एक कंपनी के साथ जो कि डेफिनेटली पीआर में दे चुका हूँ, जो कि एक सिमिलर रोल मुझे हायर कर रही है। दिस पोजीशन आई अप्लाइड, इफ देयर इज this position I applied for there is my second choice because your company has a better reputation in the market, in the industry. And I have and I would be proud to work for the businesses. तो आप ये बोल सकते हैं कि आ, मैं दूसरी जॉब्स के लिए इंटरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, बट वो पोजीशन जो है वो मेरी सेकंड चॉइस है बिकॉज आपकी कंपनी की रेपुटेशन ज़्यादा बेटर है, ठीक है, एंड आई विल बी डेफिनेटली प्राउड टू वर्क हियर। तो ये चीज़ें जो है आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक भाई। कोई एक रीज़न आपको देना पड़ेगा कि आप क्यों वो वाला ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं या आप उस कंपनी के साथ क्यों नहीं काम करना चाहते हैं। यू कैन नॉट से कि थोड़ा सा अजीब लगता है कि वहाँ सैलरी मुझे थोड़ी सी कम मिल रही है तो आप सैलरी ज़्यादा देते तो इसलिए आपके साथ नहीं। तो आपको कुछ ऐसा स्पेसिफिक रीज़न रिप्रेजेंट करना है कि क्या हो जाए एक कंपनी अपनी, कि आप अगर उसकी रेपुटेशन को अच्छा बताएंगे तो डेफिनेटली द मैनेजर, हायरिंग मैनेजर विल लाइक दिस। चलिए, व्हाई डू यू वांट टू वर्क विद अस, ठीक है। अब यहाँ भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि भैया आप हमारे साथ क्यों काम करना चाहते हैं। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं कंपनी के बारे में पढ़कर जाएं, ठीक है, क्योंकि हर मैनेजर, हर हायरिंग मैनेजर या जो भी आपके सीईओ हैं, जो भी डायरेक्टर्स हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि ये हमारी कंपनी के बारे में पढ़ के आया है या नहीं, ये जानता है या नहीं जानता कुछ हमारी कंपनी के बारे में। इसने अप्लाई किया है और आप डेफिनेटली सीनियर पोजीशन पे हैं तो आपको, अगर हैं तो आपको डेफिनेटली कंपनी के बारे में रीड करके जाना चाहिए। तो 5 गुड रीजन हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। हैव नॉन अबाउट योर कंपनी फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड रियली एडमायर इट। मैं आपकी कंपनी को काफ़ी टाइम से जानता हूँ और आई रियली एडमायर इट। अगर आप एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आप इंडस्ट्रीज के बारे में पता होता है, आप दूसरी कंपनीज के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप वो चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड, आई बिलीव आई कैन मेक ए पॉजिटिव इम्पैक्ट हियर। मुझे भरोसा है कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकता हूँ। द कंपनीज वैल्यू अलाइन विथ माई ऑन, जो मेरे से जो मेरी वैल्यूज हैं, जो मेरा विजन मिशन है, वो कंपनी का ही विजन मिशन है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है मैं यहाँ पर काम करना चाहता हूँ, उसी को लेकर मैं यहाँ पर काम करना चाहता हूँ। आई लव व्हाट आई हैव हर्ड रीड अबाउट दी कंपनी कल्चर। जो भी मैंने कंपनी कल्चर के बारे में पढ़ा है, सुना है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं यहाँ पर काम करना चाहता हूँ। आई एडमायर दी कंपनीज वर्क एथिक्स एंड कोलैबोरेटिव स्पिरिट। यहाँ के जो वर्क एथिक्स है वो मुझे पसंद है, जो टीम कोलैबोरेशन के साथ काम करती है, जो टीम लोग काम करते हैं, वो मुझे यहाँ का काफी पसंद है। चलिए, अब नेक्स्ट है, व्हाई वर यू लेट गो फ्रॉम योर लास्ट पोजीशन। भाई आपको पिछली कंपनी से क्यों निकाला गया या क्यों आप जाना चाहते हैं। अगर अभी नोटिस पीरियड में रहे या नहीं डाला है नोटिस पीरियड तो आप क्यों जाना चाहते हैं, तो इसके भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन हम रिप्रेजेंट करेंगे, माय वैल्यूज नो लॉन्गर अलाइन विद द कंपनीज मिशन। भाई जो कंपनी का मिशन है वो अलग है और मेरी जो वैल्यूज हैं वो ज्यादा अलाइन नहीं कर रही हैं अब कंपनी के मिशन के साथ, ठीक है। जो कंपनी का मिशन है उसके साथ मेरी वैल्यू अलाइन नहीं कर रही है। सेकेंड, द कंपनी आई वर्क फॉर वेंट आउट ऑफ बिजनेस। कंपनी जो है उसका बिजनेस चला गया है, उसके क्लाइंट कुछ लूज हो गए हैं, तो अब उसको जो है एम्प्लॉयज नहीं चाहिए, ठीक है। या दे हैव फायर्ड a lots of employee because they lost their business, you can mention that as well. I feel undervalued in my current role। जो मेरा करंट रोल है उसमें मैं अंडर वैल्यूड खुद को फील करता हूँ, काफी टाइम हो गया है एक ही पोजीशन पर काम करता करता, कंपनी कोई प्रमोशन नहीं दे रही है, राइट। तो उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट ना करते हुए आप ये कहें कि आई फील अंडर वैल्यूड इन माई करंट रोल। कभी कभी ना प्रमोशन मिले और ना ऐसी चीजें होती हैं, तब भी क्या होता है, आप खुद को अंडर वैल्यूड फील करते हैं, राइट। आई एम लुकिंग फॉर अ नेक्स्ट चैलेंज। मैं नेक्स्ट चैलेंज देख रहा हूँ। I want a job with bigger career opportunities, career growth opportunities। मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए जिसमें बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज देख सकूं। अब हम बात करते हैं, हाउ डू यू हैंडल अनडिजर्व क्रिटिसिज्म फ्रॉम अ सुपरवाइजर, ठीक है। भाई तो यहाँ पर आप ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर आपको आपके सुपरवाइजर क्रिटिसाइज करते हैं किसी चीज़ों को लेकर तो आप क्या कर सकते हैं, उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। भाई वो टीम लीड है, मैनेजर है,
आप उसे डायरेक्टली तो कुछ कहेंगे नहीं। तो क्या चीज़ें आप जो हैं हैंडल कर सकते हैं, क्या ये जो आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है इसको आप किस तरीके से हैंडल करें? पहला, रिलैक्स एंड लिसन, बातें आराम से सुनिए। द फर्स्ट स्टेप इज टू कीप calm एंड लिसन केयरफुली टू व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। आराम से पहले सुनिए वो चीजें। दूसरा है रिस्पॉन्ड टू द कंटेस्ट नॉट द टोन। जो चीजें बोली गई हैं, जो वर्ड बोले गए हैं, जो सेंटेंस है क्रिटिसाइज करने के लिए, उसके कंटेस्ट को आप जो है रिप्लाई कीजिए, उसके कंटेंट को, ना कि उस टोन को। तो कंटेंट आपका जो होना चाहिए वो रिप्लाई होना चाहिए, ना कि टोन। डोंट रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, इमीडिएटली रिस्पॉन्स ना कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए और फिर जो है चीजें थोड़ा सा पोलाइटली क्या कर सकते हैं, आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं। आस्क द क्रिटिक क्वेश्चंस टू बेटर अंडरस्टैंड। आप भी क्रिटिक क्वेश्चंस कीजिए उस चीज को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। डिसाइड इफ द क्रिटिसिज्म इज वैलिड, वैलिड है तो आगे बढ़िए, अदरवाइज स्टिक टू द इशू। I hope it is clear. Now, what did you do when you disagreed with a supervisor? Right? अब ये थोड़ा सा अलग चीज थी। वो जो है क्रिटिसाइज अगर कर रहे हैं तो वहां पर हमने एक्सप्लेन किया। हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप अगर डिसएग्रीड होते हैं तो क्या करेंगे। तो सबसे पहली चीज है ब्रीफली एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ द डिसएग्रीमेंट बट मेक श्योर टू डू इन अ रेस्पेक्टफुल वे। अगर आप किसी चीज से डिसएग्री हैं तो आप सिचुएशन को एक्सप्लेन कीजिए, बट एक अच्छे तरीके से, एक रिस्पेक्टफुल वे में रिप्रेजेंट कीजिए। दूसरी चीज है डोंट बी अफ्रेड टू एडमिट दैट यू आर इन द रॉन्ग। ठीक है, मत घबराइए इस चीज को एक्सेप्ट करने में कि हाँ चीजें होती हैं, चीजें गलत होती हैं, चीजें सही होती हैं। ठीक है। तीसरा, टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द कम्युनिकेटिंग विद कोवर्कर्स इवन इफ देयर इज अ डिसएग्रीमेंट। अगर डिसएग्रीमेंट है भी कहीं सुपरवाइजर के साथ तो आप ये रिप्रेजेंट कीजिए कि देयर इज सम इंपॉर्टेंस इन कम्युनिकेटिंग विद कोवर्कर्स, कि भाई आप अगर कोवर्कर के साथ कम्युनिकेट करेंगे क्योंकि एक्चुअल वो चीजें परफॉर्म करते हैं, राइट। जो टीम है आपकी वो वर्क परफॉर्म करेगी, तो आपको आपकी टीम से अगर कोई सजेशन मिल रहा है तो वो लेने में कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके सजेशन वो प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, राइट। वो चीज को देख रहे हैं प्रैक्टिकली, तो उनसे सजेशन लेकर चीजें अगर कम्युनिकेट कर की चीजें की जाए तो डेफिनेटली रिजल्ट्स क्या होंगे, बेटर होंगे। चलिए अब हम समझते हैं व्हाट मोटिवेट्स यू। ट्रिकी ग्रेजुएट इंटरव्यू क्वेश्चन, वो बहुत सा पूछा जाता है कि भाई क्या मोटिवेट तुम्हें करता है कि तुम रिक्रूटमेंट करना चाहते हो, क्या मोटिवेट तुम्हें करता है कि तुम इस फील्ड या उस फील्ड में आना चाहते हो। तो हम आई एम मोटिवेटेड बाय मीटिंग सेट टारगेट्स विद डेडलाइंस। जो मैं मोटिवेटेड होता हूँ कि कुछ सेट टारगेट्स हैं डेडलाइंस के साथ और उन्हें कंप्लीट करूँ और मैं बोलूँ कि भाई वाह यार मैंने अचीव कर ली ये चीज, राइट। तो ये एक सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि मैं टारगेट सेट करता हूँ डेडलाइंस के साथ, या मुझे डेडलाइंस के साथ जो टारगेट मिले होते हैं और मैं उन्हें अचीव करके क्या होता हूँ, हैप्पी होता हूँ। Here is an overview of types of experience that you might find motivating। ठीक है, डेडलाइंस को मीट करना, टारगेट्स और गोल्स को मीट करना, मेंटरिंग एंड कोचिंग अदर्स, अदर्स को मेंटर करना, कोचिंग्स प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग देना, ये मुझे अच्छा लगता है। लर्निंग न्यू थिंग्स, नई चीजें सीखना अच्छा लगता है। कमिंग अप विद द क्रिएटिव आइडिया टू इम्प्रूव समथिंग और मेक समथिंग न्यू, क्रिएटिव आइडियाज को रिप्रेजेंट करना ताकि नई चीजें इंप्लीमेंट की जा सकें। एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स डेटा इन ऑर्डर टू ड्रॉ क्लियर एंड सिंपल कंक्लूजन्स। भाई डेटा को मैं कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्लियर आपका कंक्लूजन निकले और सिंपल रिजल्ट्स के थ्रू आप क्या कर सके, चीजों को इंप्लीमेंट कर सके। वर्किंग वेल एज अ पार्ट ऑफ टीम, एज अ पार्ट ऑफ टीम मुझे अच्छा लगता है काम करना। लीडिंग ए टीम टू सक्सेस, टीम को लीड करना मुझे अच्छा लगता है या मुझे मोटिवेट करता है। कंप्लीटिंग ए डिफरेंट प्रोजेक्ट, डिफिकल्ट प्रोजेक्ट एंड सीइंग इट थ्रू टू द एंड, डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना भी मुझे अच्छा लगता है। स्पॉटिंग फ्लॉ एंड एरर्स, को स्पॉट करना अच्छा लगता है। फाइंडिंग ए वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ये चीजें मुझे जो होती हैं अच्छी लगती है, मोटिवेट करती हैं, ये चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक फ्रेशर्स के लिए क्वेश्चन की भाई आप जो है एज अ रिक्रूटर क्यों काम करना चाहते हैं, किसी और इंडस्ट्री में एज एन एडमिन क्यों काम करना चाहते हैं, एज एन एचआर क्यों काम करना चाहते हैं। तो
हम ये आंसर दे सकते हैं, कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई बिलीव दैट एवरी बिजनेस आइडिया रिक्वायर्स द राइट टैलेंट टू सक्सीड। हर एक बिजनेस आइडिया को एक राइट टैलेंट की जरूरत होती है सक्सेस होने के लिए। सो बीइंग ए रिक्रूटर इट अलाउज मी टू हेल्प बिजनेस टू फाइंड द राइट टैलेंट एंड हेल्प्स कैंडिडेट फाइंड द राइट ऑर्गेनाइजेशन। तो बीइंग ए रिक्रूटर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मुझे अच्छा लगता है कि बिजनेस को एक अच्छा टैलेंट मिल जाए और कैंडिडेट को एक अच्छी कंपनी मिल जाए। ठीक है। सेकेंड, आई ऑल्सो एंजॉयड वर्किंग एज एन IT रिक्रूटर सिंस इट अलाउड मी टू पुट माई टेक्निकल गुड नॉलेज टू यूज। मेरे पास जो नॉलेज है मैं उसको यूज कर पाऊं। ठीक है। तो ये चीजें जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, वाई शुड वी हायर यू। ठीक है। अगर आप फ्रेशर है तो ऐसा बोल सकते हैं, एज आई एम अ फ्रेशर आई नो द वैल्यू ऑफ ए जॉब, इफ यू हायर मी आई विल डेफिनेटली गिव माई 100% इन द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। राइट। अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो आप बोल सकते हैं have qualities like teamwork, time management, people management, team management. So definitely I would be the perfect match for your job. Also, these are my core strength in my previous role. I have worked on these skills most of the time. ये मेरी कोर स्ट्रेंथ रही है, कोर स्किल्स रही हैं प्रीवियसली, तो उस अकॉर्डिंग में काम अच्छा करूंगा या परफॉर्म ज्यादा बेटरली कर सकता हूँ। I hope my skills help your company for growth and development. That's why I think I would be a good fit. और मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे पास स्किल्स हैं वो डेफिनेटली आपकी कंपनी की ग्रोथ में हेल्प करेंगी, इसलिए जो है मैं यहाँ पर काम करना चाहता हूँ। तो ये जो है हमने डिस्कशन किया है, कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि फ्रेशर्स के लिए भी होते हैं और जो कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए भी होते हैं। तो फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों ही जो है आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। इनको ये बहुत मैंडेटरी और बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाते हैं और हम थोड़ा सा हेजिटेट हो जाते हैं इंटरव्यू के टाइम। तो आपको डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को रीड करना चाहिए बिफोर द इंटरव्यू। राइट। और जो हम मैंने और भी इससे पहले भी मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चंस दिए, वो थोड़े से लो लेवल के क्वेश्चंस है, ये थोड़ा सा एडवांस है। अब हम आगे की वीडियोस में ये भी देखेंगे कि किस तरह से एडवांस US IT रिक्रूटर या टीम लीड या मैनेजमेंट के इंटरव्यूज अगर आप देना चाहते हैं तो किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा और एडवांस लेवल होगा, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। प्लीज व्यू दिस वीडियो। वीडियो है तो आप कभी भी रिवाइंड करके कभी भी कैसे भी आप देख सकते हैं। राइट। यूट्यूब पर आप कि मेरे और भी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो उन वीडियोस को भी क्या कर सकते हैं आप देख सकते हैं फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। अगर आप US IT रिक्रूटर हैं तो और भी चीजें मैंने एक्सप्लेन की है, W2 वीजास, टैक्स टर्म्स, एवरीथिंग यू कैन वॉच ओवर द YouTube. Thanks a lot for your time. Have a great day. Bye. Take care.